بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سندھ کے مختلف محکموں میں سرکاری گاڑیوں کا ناکارہ اور انوکھا قبرستان کلفٹن کے بلاک 1 ڈی ایم سی کے گراؤنڈ میں دریافت ہو گیا۔ مرسڈیز، لینڈ کروزرز اور دیگر گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں۔ آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ۔ کرپشن یا نااہلی، سندھ سرکار کی قیمتی گاڑیاں کباڑ خانے کی زینت۔ سابقہ وزراء اعلیٰ، گورنرز، چیف سیکرٹری اور دیگر افسران کے زیر استعمال بڑی تعداد میں سرکاری ناکارہ گاڑیوں کا انوکھا قبرستان کلفٹن بلاک 1 کے ڈی ایم سی جنوبی کے گراؤنڈ میں دریافت ہو گیا۔ افسر شاہی کی عدم توجہ کے شکار پارک میں 2018 سے ناکارہ گاڑیوں کو پارک کیا گیا۔ سرکاری گاڑیوں کو بلوچستان ہاؤس قومی احتساب بیورو کے حوالے کرنے کے بعد کباڑ خانے کی زینت بن گئی۔ قیمتی گاڑیوں میں مرسڈیز، لینڈ کروزر، کرولا، ویگو، کوسٹر اور دیگر گاڑیاں شامل ہیں۔ ناکارہ سرکاری گاڑیوں کی نہ کوئی نگرانی کرتا ہے اور نہ ہی ڈی ایم سی جنوبی گراؤنڈ میں لائٹ اور صفائی کا کوئی انتظام ہے۔ آپ نے یہاں بالا حکام کو شکایت کی کہ یہاں پر لائٹ کا نظام ہونا چاہیے، پانی ہونا چاہیے؟ ہاں، سب چیزیں ہم نے لکھ کے دی ہیں، اپنے بالا حکام کو سب کو دی ہیں ہم نے لکھ کے۔ کوئی سننے والا نہیں ہے؟ کوئی سننے والا نہیں، کوئی سنوائی نہیں ہماری، اور ہم کیا بولیں؟ نہیں، کوئی افسر یہاں پر آتے ہیں دیکھ بھال کرنے کے لیے، آپ سے ان کی نگرانی کرنے کے لیے؟ کبھی آپ سے پوچھا ہے گاڑیاں کس حالت میں ہیں، کیا ان کا دیکھ بھال ہونی چاہیے، کس طرح ان کے انتظامات ہونے چاہیے؟ کوئی آتا نہیں ہے پوچھنے ہمارے۔ گاڑیوں کی ٹائر، مڈ گارڈز، انجن، بیٹریاں، نمبر پلیٹ سمیت دیگر قیمتی پرزے بھی غائب ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ رات میں اندھیرا بالکل ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر پیچھے کچھ نظر نہیں آتا ہمارے کو۔ باقی چور چکاری تو ہو رہی ہے یہاں پہ۔ یہ گاڑیوں کئی گاڑیاں ان کے قیمتی پرزے بھی غائب ہیں، یہ چور لے کر گئے، کہاں گئے؟ سر یہ اب اندھیرے میں تو یہاں پہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تو کیا بتائیں؟ مراد علی شاہ کے سابقہ دور میں اس وقت کے صوبائی وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ کی سربراہی میں سب کمیٹی بنائی گئی، لیکن کمیٹی گاڑیوں کے لیے آکشن پالیسی نہیں بنا سکی، جس کے باعث گاڑیوں کے آکشن کا معاملہ التوا کا شکار ہو گیا۔ آزاد نوڑیو، سٹی 21۔ سندھ کے محکمہ برائے انسانی حقوق کی مراعات واپس نہ مل سکیں۔ سابق 19 گریڈ کے ایڈیشنل سیکرٹریز کو خطوط ارسال کر دیے گئے۔ فضل حسین اویسی اور محمد علی راہی کو مراعات واپس کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ۔ محکمہ انسانی حقوق میں اندھیر نگری چوپٹ راج، گاڑیاں اور دیگر سامان سابق افسران کے لیے مال غنیمت بن گیا۔ افسران عہدوں پر نہیں رہے لیکن مراعات واپس کرنے کو تیار نہیں۔ 3 گاڑیاں اور 2 لیپ ٹاپ، وائی فائی ڈیوائس سابق ایڈیشنل سیکرٹریز لے اڑے۔ سابق ایڈیشنل سیکرٹری محمد علی راہی نے سوزوکی بولان واپس نہ کی۔ سابق ایڈیشنل سیکرٹری فضل حسین اویسی سوزوکی کلٹس اور مہران گاڑی پر قابض۔ محکمہ انسانی حقوق نے فاضل حسین اویسی اور محمد علی راہی کو خط لکھ دیا۔ محکمے نے گاڑیاں اور دیگر سامان واپس کرنے کی ہدایت کر دی۔ فضل حسین کو گزشتہ ماہ کرپشن کے الزام میں عہدے سے فارغ کیا گیا تھا۔ فضل حسین پر محکمہ انسانی حقوق میں ملازمہ سمرین پارس کو ہراساں کرنے کا الزام ثابت ہوا تھا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ مراعات واپس نہ ہونے کے باعث سرکاری کام متاثر ہو رہا ہے۔ سرکاری مراعات واپس نہ کرنے پر چیف سیکرٹری کو شکایت کی جائے گی۔ محکمہ اوقاف زکوٰۃ و عشر میں کرپشن کا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ بیوروکریسی نے مزارات کی مرمت کے نام پر قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا چونا لگا دیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے وزیر اعلیٰ سندھ کو سمری ارسال کر دی۔ محکمہ اوقاف زکوٰۃ و عشر میں کرپشن کا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ بیوروکریسی نے مزارات کی مرمت کے نام پر قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا چونا لگا دیا۔ مالی سال 2021 اور 2022 میں کرپشن سے متعلق دستاویزات میں انکشاف۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے ملوث افراد کے ناموں کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ کو سمری ارسال کر دی۔ دستاویز کے مطابق 2022 میں مزارات کی مرمت کے لیے مختلف کانٹریکٹرز کو ٹھیکے دیے گئے تھے۔ جون 2022 میں تعینات چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف عبدالغنی مہر نے فرضی بل پاس کیے۔ DDO ڈاکٹر اقبال ایوان نے بل قانون کے مطابق تیار نہیں کیے تھے۔ ایگزیکٹو انجینئر محمد نے ناقص پیمائش کی۔ دستاویز کرپشن کی تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ سچل سرمست کی درگاہ کے غسل خانوں کی تعمیر میں کرپشن کی گئی۔ درگاہ کنڈے شاہ کورنگی کی تزئین و آرائش اور مرمت میں کرپشن کی گئی۔ غائب شاہ مزار درگاہ نور علی شاہ تین ہٹی کے مرمتی کاموں میں بھی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ میر پور خاص اوقاف کے دفتر کی تعمیر میں کرپشن کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو بھیجی گئی سمری میں جعلی کاموں میں ملوث محکمہ اوقاف کے افسران اور ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ کراچی پریس کلب کے باہر اساتذہ کا احتجاجی مظاہرہ، ریڈ زون کا رخ کرنے پر پولیس بپھر گئی۔ بدترین لاٹھی چارج، واٹر کینن کا بھی استعمال، کئی اساتذہ بے ہوش ہو گئے، متعدد زیر حراست۔ سیکرٹری تعلیم سے مذاکرات کے بعد احتجاج ختم۔ اقصی شاہد کی رپورٹ۔
कौम के मुस्तकबिल को कलम और किताब से रोशनास करने वाले असातिज़ा पुलिस के डंडों का सामना करने पर मदद की मंजूरी के लिए एहतजाज के दौरान रेड जोन का रुख महंगा पड़ गया। पुलिस ने न सिर्फ असातिज़ा को आगे जाने से रोका बल्कि बदतरीन लाठी चार्ज का निशाना बना, वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया। पुलिस के तशद्दुद के बायस कई असातिज़ा बेहोश हो गए और मुतादिद को हिरासत में ले लिया गया। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और बेसिक एजुकेशन कमीशन स्कूल्स के असातिज़ा सिंध के मुख्तलिफ अजला से आकर एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे, शिकवा किया कि हमें आज भी सिर्फ 25,000 रुपए माहाना मिलते हैं और वो भी 3 माह बाद। 20 साल से हम प्राइमरी स्कूलों में तालीम दे रहे हैं जहाँ पर सहूलतें भी इतनी नहीं हैं, उसके बावजूद हम वहाँ तालीम दे रहे हैं और जो वजीफ़ा हमें यानी जो तनख्वाह दी जा रही है 25,000, इस महंगाई के दौर में तो बुनियादी ज़रूरियात भी इस तनख्वाह से पूरी नहीं होती। अभी हमें 4 साल का अरसा हो गया इस चीज़ पे और हमारी तनख्वाहें जो हैं 25,000 से नहीं बढ़ाई जा रही हैं जबकि 32,000 हो चुकी हैं। अब हमारा मुतालबा यही है कि हमें रेगुलर किया जाए। हुकूमत जो है हमारा कोई भी मुतालबा मानने को तैयार नहीं है तो और ना ही वो रेगुलर करने के हक़ में है, इसलिए हम लोगों ने यही फ़ैसला किया है कि अब जो है हम आगे मार्च करेंगे और CM हाउस और गवर्नर हाउस की तरफ जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सदर और SSP साजिद सदुज़ई ने असातिज़ा से मुज़ाकरात किए, ताहम बात ना बन पाई। 5 रुकनी जो कमेटी है उनको लेके SP सेक्रेटरी साहब तालीम के पास ले जा रहे हैं। पहले इनकी मुज़ाकरात हमने एडिशनल सेक्रेटरी तालीम से करवाए थे लेकिन उनसे वो शायद मुतमय्यन नहीं हुए, तो अभी सेक्रेटरी साहब तालीम के पास जा रहे हैं और हमारा यही इनसे रिक्वेस्ट है कि पीसफुल एहतजाज करें। जो हमारा प्रेस क्लब है वो उनका राइट है, लेकिन अगर वो आगे रेड जोन है आपको पता है वहाँ सिचुएशन ख़राब हो जाती है। असातिज़ा से मुज़ाकरात के लिए सेक्रेटरी जाहिद अली अब्बासी को मैदान में उतरना पड़ा। जाहिद अब्बासी की यकीन दहानी और साथियों की रिहाई के बाद असातिज़ा ने एहतजाज मौखर कर दिया। असातिज़ा का कहना है कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो दोबारा एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ अक्सा शाहिद टी। कराची में डेंगू पंजे गाड़ने लगा। रवां साल मुहलिक मर्ज से पहली हलाकत सामने आ गई। तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। इस खतरनाक बीमारी की अलामात क्या हैं, इनसे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार की जाएँ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी की कई अलामतें हैं जिसमें तेज बुखार के साथ फ्लू की अलामत का सामना होता है। अलबत्ता ज्यादा बीमार होने पर जरियान खून और मौत का खतरा बढ़ जाता है। बुखार के साथ सर दर्द, अचानक तेज बुखार, मसल्स, हड्डियों या जोड़ों में तकलीफ अहम अलामतें हैं। मतली, कै, आंखों के अंदर तकलीफ, गले में सूजन, पट्ठों में शदीद खिंचाव, इब्तिदाई 2 से 7 दिन के अंदर जिल्द पर खारिश दर्द और खारिश जैसी अलामतें सामने आ सकती हैं। बेशतर मरीज 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं मगर कई बार अलामत की शिद्दत बढ़ जाती है और इस सूरत में ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। डेंगू की संगीन शिद्दत जानलेवा होती है और इसकी इंतबाही अलामत बुखार उतरने के 1 या 2 रोज बाद जाहिर हो सकती है, जिनमें पेट में शदीद दर्द, बार बार कै, नाक या मसूड़ों से खून बहना, पेशाब, कै में खून, सांस लेने में मुश्किल महसूस होना या सांस फूल जाना, थकावट और चिड़चिड़ापन काबिल जिक्र है। अगर आप घर में कुछ एहतियाती तदबीर इख्तियार करें तो इस खतरनाक मच्छरों के हमलों से बचा जा सकता है। मच्छरों की अफजाइश की जगहों को खत्म करें। मच्छरों को फैलने से रोकने के लिए सबसे अहम इकदाम उनकी मुमकिना अफजाइश की मकामात को खत्म करना है। मच्छर खड़े पानी में बढ़ते हैं, लिहाजा ठहरे हुए पानी से छुटकारा हासिल करें। खड़े पानी के तमाम जगहों को साफ करना, गुलदान, बिरल और कप वगैरह शामिल हैं। कभी भी गीला फुजला अपने घर या आसपास जमा ना होने दें। हमेशा टॉयलेट को साफ रखें और कूड़ेदान को ढांप कर रखें। यकीनी बनाएं कि आपके पानी के टैंक को मुनासिब तरीके से सील किया गया है। अगर आपके घर में पालतू जानवरों का कोना या बाग है तो आपका घर मच्छरों को मुतासिर करने के लिए एक इंक्यूबेटर बन जाएगा। मुर्दा मच्छरों के खात्मे के अमल के दौरान आप डेंगू बुखार का शिकार हो सकते हैं। ये एहतियाती तदबीर इख्तियार करके डेंगू बुखार जैसी मुहलक बीमारियों फैलने वाले मच्छरों से बचा जा सकता है। कराची समेत सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। शहर में पोलियो मुहिम 7 रोज़ तक जारी रहेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले वर्कर्स कहते हैं हर बार मुहिम में मुश्किलात का सामना रहता है। फरहान खान की रिपोर्ट। बच्चों को मूजी मर्ज से बचाव का अज़म, इंसदाद पोलियो मुहिम का भरपूर आगाज। सिंध के 19 अजला में तकरीबन 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। आज से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम 9 जून तक जारी रहेगी। इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले वर्कर्स कहते हैं कि हर बार मुहिम के दौरान बहुत मुश्किलात आती हैं। शहरी हमें देख कर दरवाजे बंद कर लेते हैं, बहाने बनाए जाते हैं। जब टीमें घर घर जाती हैं और बच्चों को, तो अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, मुँह
पा मार देते हैं कि हमें नहीं पिलाना। ये ज़्यादातर कम्युनिटीज़ में होता है, तो ये है कि हम लोग फिर भी बर्दाश्त करते हैं। पोलियो इंचार्ज UC3 अरबाब अली ने बताया कि 7 रोज़ा मुहिम में चकरा गोड के 21,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ है। हमारा टोटल टारगेट जो बच्चों का है हमारे तकरीबन 21,000 समथिंग है। जो घरों का टारगेट है बच्चों का वो है, घरों का टोटल जो टारगेट है वो तकरीबन 32,000 हमारे यहाँ घर हैं जो 5 दिनों के अंदर टीमें पूरा का पूरा विजिट करेंगी। शहरी कहते हैं सारी जिंदगी की माजूरी से बेहतर है अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। बच्चे को ये पिलाने से है ना, बच्चे का सेहत सही रहते हैं। पोलियो नहीं पिलाने से बच्चा माजूर हो जाते हैं। लिहाजा में ये बात करते हैं, पोलियो वाला को हमारा तरफ से सलाम भी है। 7 रोज़ा जारी रहने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम में 35,000 से जायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी हिफाजत के लिए 4,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ फारान खान, सिटी 21। कुत्ते का कत्ल, मालकन ने इंसाफ के लिए अदालत का रुख कर लिया। मुदैया कंवल ने कहा कि कुत्ते को सड़क से उठाकर घर लाई, बच्चों की तरह पाला। मुल्जिमान ने घर में घुसकर कुत्ते की जान ली। पुलिस वाले मुल्जिमान से मिले हुए हैं। इंसाफ के लिए हाई कोर्ट भी जाऊंगी। कराची में इंसानों के बाद कुत्ते भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स का निशाना बनने लगे। गुलशन इकबाल में घर में घुसकर कुत्ते को कत्ल करने पर मालकिन को सदमा। कंवल नामी खातून ने इंसाफ के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मुदैया कंवल के मुताबिक 15 अप्रैल को मुल्जिमान ने घर में घुसकर कुत्ते को मार डाला। उनका कहना था कि कुत्ते को सड़क से उठाकर घर लाई, 3.5 साल तक अपने बच्चों की तरह पाला था। ये 15 अप्रैल का वाक़या, मैं शाम को मार्केट गई हूँ। जब मैं 7 बजे करीब अपने घर आई हूँ तो देखा ताला कटा हुआ था, उसका कुंडा बाहर पड़ा हुआ था। मैं कुंडी खोल के घर के अंदर दाखिल हुई और मैंने आते ही सबसे पहले अपने कुत्ते की तरफ आई हूँ तो वॉशरूम में देखा कि खून बिखरा पड़ा हुआ था और कुत्ते की लाश तक गायब कर दी थी इन लोगों ने मार। खातून का कहना था कि 10 रोज की परेशानी के बाद कहीं जाकर कुत्ते के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। मालकिन कंवल ने इल्जाम लगाया कि पुलिस वाले मुल्जिमान से मिले हुए हैं, इंसाफ ना मिला तो हाई कोर्ट जाऊंगी। मुमताज जमाली, सिटी 21। नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर है। सस्ते जानवरों के साथ साथ महंगे जानवरों की खरीदारी भी जारी है। 1 करोड़ रुपए का जानवर शहरी ने खरीद लिया। एहसन अब्बासी तफसीलात बताएंगे। ईद कुर्बा की आमद है। बच्चे बूढ़े जवान सबका रुख मवेशी मंडियों की जानिब। नॉर्दर्न बाईपास पर लगी मंडी लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। मुल्क भर से व्यापारी कुर्बानी के जानवर लिए कराची पहुंच रहे हैं। कई खूबसूरत और सेहतमंद जानवर मवेशी मंडियों की जीनत। मवेशी मंडी का शाहकार बैल पहुंचने के साथ ही फरोख्त हो गया। व्यापारी के मुताबिक 6 साल की उम्र का 60 मन का ब्राह्मण बैल 1 करोड़ रुपए में शहरी ने खरीदा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माल 30 माल है, अभी 3 बिका है। बाकी जो है ना 1 40 लाख का बिका है, एक 1 करोड़ का, एक बिका है 15 लाख 20 हजार का, बाकी खड़ा हुआ है। भावलपुर से आने वाले व्यापारी ने बैल की ताकत और खूबसूरती का राज बता दिया। ब्राह्मण नस्ल के इस बैल को दूध, दही, तेल, घी और चने की अट्टी के साथ जौ का दलिया, भीगी हुई गंदम और नाज नखरों से पाला गया है। भाईजान पहले तो इसकी खुराक जो है ना देसी खुराक है, चने की अट्टी, गंदम का दलिया, आटा, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना इसको 10 किलो दूध देना पड़ता है। सुबह जो है ना सरसों का जैनियन तेल और दही के साथ जो है ना इसको सुबह जो है ना देनी पड़ती है दही, ठीक है ना। देसी खुराक से हमने इसको तैयार किया है अल्हम्दुलिल्लाह। भावलपुर से लाया जाने वाला ये बैल मवेशी मंडी में सबसे बड़ा कुर्बानी का बैल है। ईद से 4 दिन कबल कुर्बानी के लिए खरीदार के घर रवाना कर दिया जाएगा। कैमरामैन हैदर के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। बिजली के भारी बिल अदा करने वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने बिलों की किस्त और अदायगी की सहूलत महदूद कर दी है। सार्फिन अब साल में सिर्फ एक बार ही बिल की किस्त जमा करा सकेंगे। नेपरा ने तमाम बिजली कंपनियों को अहकामात जारी कर दिए। नेपरा ने तमाम बिजली कंपनियों को अहकामात जारी किए हैं। बिजली के भारी बिल अदा करने वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने बिलों की किस्तवार अदायगी की सहूलत महदूद कर दी है। बिजली की अजियतनाक लोड शेडिंग से ताजिर भी परेशान। दुकानदार कहते हैं कि लोड शेडिंग के दौरान कारोबार मुश्किल है। हुकूमत हमारे टैक्स से चल रही है, हुक्मरानों की भी बिजली काटनी चाहिए। अयाज राना की रिपोर्ट। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने ताजरों के भी पसीने छुड़वा दिए। मलिर जिन्ना स्क्वायर पर ताजिर हुकूमत और के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। दुकानदार कहते हैं घर के साथ कारोबारी मरकज पे भी बिजली नहीं है, ऐसे में कारोबार कैसे करें। सुबह घर से निकल के आते हैं, घर पे भी लाइट नहीं है। जब इधर आते हैं यहाँ भी लाइट नहीं है। लाइट की कोई टाइमिंग नहीं है, आने
जहाँ आने का तो नहीं पता, जाने का भी नहीं पता है यहाँ लाइट का कब आएगी और कब जाएगी। दिन में 6 घंटे लाइट है, यहाँ वहाँ मुश्किल। के इलेक्ट्रिक से परेशान ताजरों का कहना है हुकूमत बेहिस हो गई है, हमारे टैक्स के पैसों से हुक्मरानों की अय्याशियां लगी हुई हैं। हुकूमती अफसरान की बिजली बंद करें ताकि उनको भी अवाम का एहसास हो। ना घर पे बिजली होती है ना ये के इलेक्ट्रिक के जो अरबाब इख्तियार है ना, इनको इस गर्मी में इनके ऑफिसों के AC बंद करके बिठाया जाए ना तो इनको पता चले। बच्चों के पेपर हो रहे हैं, ना तो वो तैयारी कर सकते ना हम कारोबार कर सकते, पूरा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, घर पे जाते हैं अलग लड़ाई झगड़ा। जब आदमी सुकून में नहीं होगा तो कारोबार क्या करेगा। ताजरों ने मुताल्लिका इदारों से अपील की है कि बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन उस्मान के साथ अयाज राना, सिटी 21। महकमे औकाफ की हज़ारों एकड़ ज़मीन किन बासर शख्सियात के ज़रिए इस्तेमाल है। सिंध हाई कोर्ट ने महकमे औकाफ उश्र ज़कात की ज़रिए इस्तेमाल ज़मीन से मुतल्लिक तफसीलात तलब कर ली हैं। रेवेन्यू हुकाम के साथ मिली भगत करके ज़मीन पर कब्जे का केस, अदालत ने मुलजिम को 14 रोज़ा अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। इस हवाले से ये रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में महकमा औकाफ की हज़ारों एकड़ ज़मीनों पर कब्जा केस की समाअत हुई। अशरफ ज़कात की ज़ेर इस्तेमाल ज़मीन से मुतल्लिक तफसीलात तलब कर लें। अदालत ने ज़रिए ज़मीन और बासर शख्सियात के ज़ेर इस्तेमाल ज़मीन की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 242 में मुबैना धांधली केस की समाअत के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने अपना बयान हल्फी जमा करा दिया। रेवेन्यू हुकाम की मिली भगत से जमीन पर कब्जा केस में स्पेशल सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट ने मुलजिम को 14 रोजा अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान हंगामा आराई के 3 मुकदमात पर हलीम आदिल शेख मलेर कोर्ट में पेश हो गए। फाजिल जज की गैर हाजिरी के बायस मजीद समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। लापता अफराद केस में सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर होम सेक्रेटरी को तलब कर लिया। 3 साल बच्ची की बाजियाबी पर अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया। बड़े आपको बताएं कि जमात इस्लामी कराची का मुकदमा पूरे मुल्क में ले जाने के लिए तैयार। ईद उल अजहा के बाद बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, शहर पर मुसल्लत माफियाज को बेनकाब करूंगा, डॉक्टर्स इंजीनियर्स को चुन चुन कर कत्ल करूंगा। डॉक्टर्स इंजीनियर्स को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय प्रोटोकॉल पर मामूर है। ताहा मलिक की रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम पर बरस पड़े। इदारे नूर हक में की अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, शहर में 5 माह में 90,000 जराइम के वाक़यात हुए, 78 अफराद स्ट्रीट क्राइम में कत्ल किए जा चुके हैं। ताकत के इस्तेमाल के लिए रियासत मौजूद, लोगों को सहूलत देने के वक्त गायब। देखें, अगर एक साल में 90,000 वाक़यात मौजूद हुए हैं और पिछले साल यानी जिसमें डकैती के वाक़यात हैं, इसमें मोबाइल छीनना है, इसमें मोटरसाइकिल छीनना है, इसमें कारें छीनना है, इसमें नकदी छीनना है, तो आप ये बताइए कि 90,000 वाक़यात इस शहर में हुए, तो अब इस 5 साल में तकरीबन 5 महीने में आधे वाक़यात हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का कहना था कि कराची का सिस्टम इस्लामाबाद मुंतकिल हो चुका। हुकूमती सरपरस्ती में करप्शन और मंशियात का धंधा उरूज पर है। अवामी हकूक़ के लिए ईद के बाद बड़ी तहरीक चलाएंगे। पार्टियों ने कराची को ऑन नहीं किया, ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किया, इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, लेकिन जमात इस्लामी इस शहर को ऑन करती है और करेगी इंशाअल्लाह, और पूरी ताकत से करेगी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि लोग बगैर वोट आएंगे तो हाल ख़राब ही होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये लीटर कमी की मंजूरी दी, लेकिन मातहत इदारे ने 4 रुपये की कमी की। समझ जाएं कैसे हुकूमत चल रही है। कैमरामैन हारिस के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। आगे बढ़े आपको बताएं, सिंध सरकार ने मुख्तियार कार गुलजार हिजरे स्कीम 33 कराची मोहम्मद इरफान लाचारी को ओहदे से फारिग करके OSD बना दिया। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, ऐसा है कि सिंध हुकूमत ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुख्तियार कार हैं गुलजार हिजरी के स्कीम 33 कराची के मोहम्मद इरफान लाचारी, उनको ओहदे से फारिग करके उनको महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। जबकि हुकूमत सिंध ने एक बार फिर से बासर मुख्तियार कार एजाज हुसैन खान को जो मुख्तियार कार गुलजार हिजरी स्कीम 33 कराची तैनात कर दिया। जबकि एजाज हुसैन खान का जो मुख्तियार कार गोठाबाद से जो अजला पटटा से तबादला कर दिया गया है, जबकि निगरान हुकूमत के दौरान जो है उनको कराची से बदल करके ठट्टा में तैनात किया गया था। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर से जो है एजाज हुसैन खान को मुख्तियार कर गुलजार हिजरी स्कीम 33 तैनात कर दिया है। इस हवाले से मैं सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बक्काउल अवरन ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया।
पाकिस्तान में एक साल में महंगाई की शरह 38% की बुलंद सतह से घटकर 12% से भी नीचे गिर गई। मई में शरह 11.76% रही। माहिरीन कहते हैं कि अब शरह सूद में कमी के इम्कानात बढ़ गए हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। महंगाई की तूफानी लहरें साकिन होने लगी। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक साल में महंगाई की शरह 38% की बुलंद सतह से घटकर 11.80% पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई 2024 में महंगाई की शरह 11.76% रही, जबकि अप्रैल में ये 17.34% थी। रवा माली साल 11 माह में महंगाई की शरह 24.52% रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी, खाने पीने की अशिया और ट्रांसपोर्ट के किराए कम हुए। अप्रैल के मुकाबले मई में टमाटर, प्याज, मुर्गी और गंदम की कीमत में भी बड़ी कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 29 माह की कम सतह तक गिर गई। नवंबर 2021 में शरह 11.80% थी। माहिरीन का कहना है कि स्टेट बैंक की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से बढ़ती महंगाई की रफ्तार कम हुई। साथ ही रुपए की कदर में इस्तेहकाम और ज़री पैदावार में रिकॉर्ड इजाफे की वजह से अजनास की कीमतों में कमी हुई। पाकिस्तान में महंगाई बदतदरीज नीचे आ रही है, जिसका सबूत इन्फ्लेशन के नंबर है। अप्रैल में हमने देखा 17% से ज़ायद महंगाई की शरह थी, जो कि अब कम होकर लास्ट मंथ हमने मई में देखा 11.8 के पास आ चुकी। काफ़ी खुशाइन बात है। हमने देखा कि खास तौर पे जो हमारी करेंसी एक जगह मेंटेन है, उसने काफ़ी इसका सहारा दिया। फिर साथ साथ हमने देखा कि अजनास की कीमतें काफ़ी ज़्यादा नीचे आई। माहिरीन की राय है कि महंगाई की शरह में नुमाया कमी के बाद अब शरह सूद में कमी के इम्कान बढ़ गए हैं। अशरफ खान, सिटी 21। काटी के साबिक सदर मसूद नकी ने महंगाई में कमी पर शरह सूद कम करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं महंगाई कम हो गई तो शरह सूद इतना क्यों, इसे कम किया जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट। सनअतकारों ने महंगाई में कमी पर सवालात उठा दिए। कोरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर मसूद नकी का कहना है कि क्या मार्केट में फरोख्त होने वाली हर शय की कीमत कम हो गई? क्या बिजली और गैस की बुलंद तरीन कीमत के कोई असरात नहीं हो रहे? अगर इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह कम हुई है तो अब 22% की बुलंद शरह सूद में भी कमी की जाए। आपके आदाद-ओ-शुमारी कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन रेट जो है ये कम हो गया, ये आधे से भी कम हो गया। 38% से आप कहाँ पहुँच गए, मार्वलस अचीवमेंट है। तो ये जो 2% करके बढ़ाए थे और 22% पे खड़े हुए, इसके ऊपर क्यों नहीं तवज्जो देते? इसी शरह से फिर उसको भी इन्फ्लेशन को कम करना चाहिए ताकि बिजनेस कम्युनिटी को कहीं ना कहीं इसका कोई रिलीफ मिले। काटी के साबिक सदर बोले, इस वक्त इंडस्ट्री के लिए बिजली और गैस के बिल की अदायगी सबसे बड़ा मसला है। इंडस्ट्री बिजली की बुलंद तरीन कीमत पर मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती और न ही रीजन में बरामदात में मुकाबला हो सकता है। पूरे रीजन के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आपसे मैच कोई नहीं करता इंडस्ट्री को। इतना बुरा हाल हो गया आपके प्राइस का, क्या करेगी इंडस्ट्री? ये बहुत सोचने की बात है। मेरी तो सर्वाइवल की दौड़ हो गई ना इंडस्ट्री की। जितने भी कारखानदार हैं, जितने भी कारोबारी लोग हैं जो सर्विस सेक्टर पे हैं, टेक्सटाइल का, आज स्पिनिंग का हाल आप देखने सिर्फ इसी रेट्स की वजह से हुआ है। कोरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इंडस्ट्री को चलाने के लिए बिजली और गैस के निर्ख में कमी करे। अब भी इकदाम ना हुए तो मजीद इंडस्ट्री बंद होगी। कैमरामैन उस्मान के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान का तजारती ग्राफ बुलंदी की जानिब गामजन। पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस में बेहतरी। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का बिजनेस कॉन्फिडेंस रिपोर्ट जारी। अशरफ खान की रिपोर्ट। OICCI सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस में बेहतरी हुई है। मार्च से अप्रैल में पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में इजाफा हुआ। CCI के सर्वे में पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में 4% बेहतरी आई। ताहम कारोबारी एतमाद बदस्तूर मनफी है, लेकिन बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स मजमूई तौर पर मनफी 14% रहा, जो इससे कबल सर्वे में मनफी 18% था। OICCI सदर रेहान शेख का कहना है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स से माशी बहाली के कुछ मुस्बत आशारिये मिले। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 4% बेहतरी एक पुरउम्मीद कारोबारी माहौल की निशानदेही है। रिपोर्ट में महंगाई, भारी टैक्सेस, हुकूमती पॉलिसियां सरमायाकारों के लिए अहम खदशात करार दिया। OICCI बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के नताइज तकरीबन 80% GDP स्टेक होल्डर के तासुरात की अक्कासी हैं। सर्वे में 43% जवाब दहंदगान मैन्युफैक्चरिंग के शोबे से आए, 36% खिदमात के शोबे से और 20% रिटेल होलसेल तिजारत के शोबे से वाबस्ता थे। अशरफ खान, सिटी 21। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। क्लिफ्टन, डिफेंस और कोरंगी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ओल्ड सिटी एरिया लियारी में भी झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके मुकामी वक्त के मुताबिक 6:36 पर महसूस किए गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 महसूस की गई। ज़लज़ला फैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 और गहराई 22 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ कराची से 15 किलोमीटर शुमाल मशरक़ में था। शहरियों के मुताबिक ज़लज़ले के झटकों का दौरानिया बहुत कम था।
और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बाईसाइकिल का आलमी दिन मनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 3 जून को आलमी यौम साइकिल करार दिया। साइकिल को दोबारा सड़कों पर लाने के लिए डेनमार्क की मिसाल दी जाती है, जहां 50% बाशिंदे साइकिल पर सफर करते हैं। इसके लिए 12,000 किलोमीटर तवील ट्रैक्स और साइकिल दारुल हुकूमत कोपनहेगन के शहरी रोजाना 3 किलोमीटर की मसाफत साइकिल पर तय करते हैं। यानी तमाम शहरियों का मजमूई सफर एक रोज में दुनिया के गिर्द 35 बार चक्कर लगाने के बराबर है। मौसम सरमा में 75% ज़राए मवासिलात साइकिल होती है, इसलिए कोपनहेगन को दुनिया साइकिल का दारुल हुकूमत करार दिया जाता है। तभी माहिरीन का मानना है कि जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त तवाना रहने के लिए साइकिल चलाने से बेहतर कोई वर्जिश नहीं, जो बच्चे और बूढ़े सब चला सकते हैं। कमसिन बच्चों के लिए छोटी साइकिल्स मार्केट में आम दस्तयाब हैं, जिन्हें खरीद कर बच्चों को भी तरबियत दी जा सकती है और मौसमियाती मसाइल से निमटने के लिए नई नस्लों को बेहतरीन शऊर से फैज़याब किया जा सकता है। मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में लोग बेहिस्सो हरकत होने के बायस मुख्तलिफ अमराज का शिकार रहते हैं, ताहम साइकिल चलाने वाले अफराद जिस्मानी तौर पर मजबूत और मुख्तलिफ बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। और तेज गाम में सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दौरान सफ़र मुसाफिरों के लिए गर्मा गर्म खाने का एहतमाम। अक्सर शाहिद तफसीलात बताएंगे। मुसाफिरों के लिए रेलवे इंतजामिया का एहसन इकदाम, अब मुसाफिरों को मिलेगा गर्मा गर्म खाना। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस में भी डाइनिंग कार की सहूलत दस्तयाब। शानदार रेस्टोरेंट के मंजर पेश करते इस खुसूसी डब्बे में मुसाफिरों को गर्म रोटी की फरहमी के लिए तंदूर भी मौजूद, बारबेक्यू और पिज्जे के लिए भी इंतजामात। इससे कबल डाइनिंग कार की सहूलत बहुत दिन जिक्र एक्सप्रेस में फराहम की गई थी, जो कामयाब साबित हुई। लाहौर से डाइनिंग कार को चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर पाकिस्तान रेलवे आमिर बलोच ने इफ्तिताह करके रवाना किया और कहा, अब खैबर मील और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में डाइनिंग कार लगाई जाएगी। कराची में डिविजनल सुपरिटेंडेंट नासिर खलीली ने डाइनिंग कार का इफ्तिताह किया। बोले, मुसाफिरों की सहूलत के लिए ऐसे मजीद इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान रेलवे को फ़ायदा तो इससे कोई माली फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने माली फ़ायदे के लिए नहीं किया, ये सिर्फ मुसाफिरों के फ़ायदे के लिए किया। इसको मुसाफिरों को फ़ायदा है कि उनको एक अच्छा खूबसूरत इन्वायरमेंट मिलेगा, साफ़ सुथरा फूड मिलेगा, उनको सफ़र को इंजॉय करेंगे। कहीं अपने केबिन्स में अपने सीटों में तंग होंगे तो आके यहाँ बैठ जाएंगे, गपशप लगा लेंगे, कोई चाय पी लेंगे, कोई खाना खा लेंगे। तो बेसिकली तो ये उनके लिए है। रेलवे का यही है कि रेलवे ने अपनी इमेज बिल्डिंग करनी है, रेलवे ने अपने पैसेंजर्स को फैसिलिटेशन देना है, रेलवे ने इसमें से कोई बेनिफिट नहीं लेना। डाइनिंग कोच के मैनेजर का कहना है, डाइनिंग कार में एक वक्त में 35 मुसाफिर खाना खा सकते हैं। डाइनिंग कार में 40 से ज़ायद खाने पेश करेंगे। ज़्यादातर तो हमारा व्यूज़ देख के गेस्ट आता है पहली बात तो, और डिनर में हमारे पास बहुत ज़्यादा रश होता है, लंच में भी रश होता है हमारे पास, ब्रेकफास्ट में भी ज़्यादा होता है, और हमारा गेस्ट जो है रिपीट बहुत हो रहा है माशाल्लाह। और क्योंकि हमारा टेस्ट बहुत अच्छा है इसलिए, और व्यू भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं कैसा व्यू है हमारा, उससे ही गेस्ट जो है हमारा इम्प्रेस हो रहा है ज़्यादातर हमसे। और हमारा स्टाफ ट्रेन है, सर्विस अच्छी दे रहे हैं हम। रेलवे हुकाम का कहना है, इदारे की सालाना आमदनी 70 अरब से ज़ायद हो चुकी है। टारगेट से भी 7 अरब ज़्यादा कमाए गए हैं। अब मुसाफिरों को सहूलियात फरहमी का दायरा वसी किया जाएगा। जब सफ़र रेल का हो और कई घंटों पर मुहित हो तो भूख तो लगी जाती है, और ऐसे में जब आपको मज़ेदार पकवान खाने को मिले, वो भी बेहतर माहौल में, तो सफ़र का मज़ा मज़ीद दोबाला हो जाता है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ अक्सर शाहिद सिटी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।